हाँ रे हो जी दादाजी, हरे तमा हो जी તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. हाँ रे हो जी प्यारा जी, હરે ઓજી પ્યારાજી સહારા બીના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. हाँ रे हो जी दादाजी, હરે ઓજી દાદાજી हाँ रे हो जी प्यारा जी, हरे ओजी प्याराजी जगत को संगे जदुक जगत को संगे जुदो केवल सत्संगे जसुख. केवल सत्संगे जसो દાદાજીનું હસતું મુખ दादाजी नो हसतो मुख તમને દર્શન થાતા સુખ. शमने दर्शन थाता सुख હીરા મોતી મારાજી, हीरा मोती महाराजी સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના ડરું નથી. તારે હોજી દાદાજી, હારે ઉજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લુખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખું લાગે સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરવું દિવસ રાત જાગે જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે રોગો અતિક્રમણાજી, રૂખો અતિક્રમનાજી આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે ઉજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારી ઉજી પ્યારાજી
સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સારા વિના બીજ ઉગતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમો श्रेया છે. हाँ. उनका कोई आने वाला है? हाँ मैं बुलाती हूँ एक ओके श्रेया, नो कलम. જય સચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા ન કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા ન કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંટેલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંટેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન किया जाए, न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં દુગ્ધમણ ન કરાય એવી શક્તિ આપો. તમસ્તી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલા કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના किया जाए, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાના નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. કે મોનિકા શ્રીમંત બોલાવીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, આયરિયાણમ, નમો લોએ સવસાહુનમ, નમો નમો લોએ લોકે સવ્વસાહનમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, ઓકારો, સવપાવ સર્વ પાવપણાસનો, મંગલાનમ ચ સવેસે, મંગલાનમ ચ સર્વે પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
जय सच्चिदानंद। जय ओके श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम भी रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठा में शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। चिनाई। ओके दक्ष। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं आते हैं, जो भी अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी ही करना कि जिससे अंदर शांत रूप से आवरण टूट जाए, वो पढ़ाई सही ढंग से करनी ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। Deepakanaji, can you get that health, ancient health? Okay, thank you. Okay, Daksh. हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दक्ष। हे शुद्धात्मा दादा का आप ऐसी करना की हे शुद्धात्मा दादा का भला उदासी लगे, शुद्धात्मा दादा ने परमानेंट दक्ष लगे, हे शुद्धात्मा दादा का ना प्रियलु दक्ष रिलेटिव जय सच्चिदानंद। Okay, Chennai. जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પરિષ્કાર જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પરિષ્કાર રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, પરિષ્કાર ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Sachidanand. Okay, are you happy, Chennai? Karisma. हाँ दादा। You? आज बहुत दिनों के बाद सत्संग में Monica, I'm not talking to you. हाँ। Karisma, why? हाँ। Why? Okay, Kushi, Kushi. मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने रोज दादा ने जो भी कहा वो फॉलो किया और आज सत्संग में आई। Very good. अभी तो आपको क्लास लेने का है कि क्या क्या आपने 4 दिन क्या क्या 4-5 दिन ग्रहण किए। मोनिका? जय सच्चिदानंद। मैं आज हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद सत्संग में आई इसलिए। और इतना सत्संग तो इतना मिला, 4-5 दिन तो सत्संग मिला। मुझे बहुत अच्छा समझ में भी आया। ओके, हमको बताना पड़ेगा। हम हसमुख काका को क्या समझ में आया। एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज सुपर ब्रेन योगा किया था, सूर्य नमस्कार नहीं। 4 दिन और 5 दिन। 5 दिन सूर्य नमस्कार नहीं किया।
देखो कांति दादा आता है ना तो उसके साथ उसको बोलो चलो एक्सरसाइज करने का। आप लोग क्या करते हैं? हैं? कांति दादा तो फिट एंड ट्रिम है। स्नेहा हाँ और जी खाते के पहले प्रेयर करते हैं क्या नहीं? करते हैं। वेरी गुड। श्रेया? हाँ जी सच्चिदानंद, मैं आज हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ टाइम टेबल टाइम टेबल फॉलो किया और मैंने खाने से पहले प्रेयर भी की थी कितनी दफा? 3 बार। ओह भाई क्या बात है, वेरी गुड। श्रेया? लक्ष्य? जय सच्चिदानंद। आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज का मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया था और आज मैंने सारी एक्सरसाइज करी थी। वेरी गुड। आप कौन सा पेपर था? इंग्लिश का। इंग्लिश का तो आप मास्टर है, राइट? नहीं दादा, हाँ अभी प्रिपरेशन कर ली थी तो अच्छे से आ गया था सारे क्वेश्चन। नो, यू टू बिकम अ मास्टर इन इंग्लिश, ओके? हाँ। और साक्षी बा? दादा शक्ति दीजिए जिससे मेरा मैथ्स का पेपर भी अच्छा जाए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, ओके? हाँ। और अच्छा प्रिपेयर किया है हाँ। दीपक दादा? I just said all the best to Daksh. ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। असम काका, Thumbs up. thumbs up करने का, ऑल द बेस्ट। ओके, इतेक्सी बा? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि आज मैं घर पे एक्स्ट्रा स्टडी नहीं कर पाई थी क्यों? क्योंकि मैं स्कूल से थक के आगे आकर सो गई थी। फिर और उसके साथ मैंने 1 आवर मैथ्स किया, उसके बाद मैं मेरे संगीत में चली गई थी, इसलिए आज मैं नहीं कर पाई थी आप एक्स्ट्रा स्टडी, सिर्फ 1 आवर मैथ्स कर पाई थी। आप पौष्टिक फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ। आप पौष्टिक फूड खाते हैं कि नहीं? हाँ। तो यू शुड बी फिट एंड ट्रिम एंड एक्टिव ऑल द टाइम। ऑल द टाइम आपको थक जाती है, वो कैसे करेगा? तो हाँ? 2 दिनों से नहीं थकी थी, सिर्फ आज मुझे थक गई थी इसलिए सो गई। कि वो बाद में दीपक दादा को प्राइवेटली फोन करना। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी क्विकली चेन्नई, क्या आपने समझ में आया? 4 दिन दीपक दादा है, 4 दिन इन लोग का सत्संग में सब सब क्वेश्चन ये तीनों दोनों बहनों ने किया। हाँ, पापा मम्मी कुछ क्वेश्चन नहीं, हमने सुना नहीं है कम। ओके, जल्दी जल्दी बोलो कुछ ही। हाँ, मैंने इस 4 दिन में ये सीखा, शुद्धात्मा में कैसे रहने का उन्होंने समझाया, और 5 आज्ञा एक ही सिचुएशन में कैसे हैंडल करना वो भी सिखाया, और उनकी बेनिफिट जब भी पद गाते थे उसका मीनिंग भी समझाया था उन्होंने। ओके, तो हमको आता नहीं है शुद्धात्मा, फिर हमको नहीं आता है शुद्धात्मा कैसे रहने का, आप हमको टीच करो। रिलेटिव व्यू पॉइंट थी दीदी, रियल व्यू पॉइंट थी शुद्धात्मा। ओके, व्यवस्थित शक्ति ने दीदी को मुझे मिलवाया है, और मुझे उनको फाइल से संभावित निकाल करना है। तो 5वीं आज्ञा में जमा करती है। ओके, वेरी गुड। तो अभी 1 2 3 4 5 5 आज रिलेटिव देखा अभी? 5 1 2 3 4 5 में 6 में अभी देखा रिलेटिव? मैंने टीचर्स स्कूल में देखा था। नहीं नहीं, अभी की बात करता हूँ। श्रेया, दक्ष, दोनों बाप तो पुत्र, मैं, ताक्षिबा, नहीं देखा? देखा। नहीं देखा तो शुद्धात्मा कैसे पहचान जाएगा? ओके, एनीवे, मोनिका? जय सच्चिदानंद, इन 4 दिन सत्संग में मुझे अपरिग्रह, आचार्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य का 5 महाव्रत बताए गए थे, और साथ ही माया का मतलब भी बताया था।
मायर का मतलब ये है जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है, और साथ ही हमें हमेशा शक में रहना है। और मम्मी के साथ जो मम्मी जब भी बुलाती है उनके सामने जाना चाहिए, मना करना नहीं चाहिए, और मम्मी के अंदर शुद्धात्मा भी देखना चाहिए। ओके वेरी गुड। तो आपने माया का मीनिंग हमको मालूम नहीं पे। जो देखते हैं वो नहीं देखने का, और नहीं देखते देखे, वो कैसे हो सकता है? हाँ, उसका एक एग्जाम्पल है, दादा हाँ। ने ये बताया। हाँ। हाँ, जब हम एक किसी भी अंधेरे कमरे में होते हैं, तब हम्म। कोई भी रस्सी पड़ी रहे, तो हमें उस समय अंधेरे में दिखता नहीं है कि वो रस्सी है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हवा चलती है, तब ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त सांप है। जब लाइट ऑन होती है तब पता चलता है कि वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो उसको माया कहते ओके, और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, क्या क्या कैसा यूज करेगा? हैं। वो तो आपके अंधारे में, आपने अंधारे में जाके लाइट किया। हाँ, हाँ, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेगा? जो भी मेरी मिस्टेक्स है, भूल है, उसके लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, ना कि उस मिस्टेक को ही बैठकर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो देखने की, नो देखने की बात है उसमें। आर्ग्यूमेंट के किधर आ गया? आपने क्या हाँ। बताया कि जो देखते हम्म। हैं नहीं, नहीं सच्ची है, और सच्ची है नहीं हाँ। देखते। वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा? असू काका, वो जरा बताइए, बाद में वो हेल्थ का कम करेंगे। हाँ, एक मिनट एक मिनट। कब श्रेया, दक्ष, पिताक्षी को मालूम पड़ा ना माया का डेफिनेशन बोला अभी? वो देखते हो नहीं देखते हो, नहीं देखते हो देखते हो, वो माया की बात है। अभी एग्जाम्पल दिया, बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे इम्प्लीमेंट करने का है। असू काका। हाँ, वो आगे क्या बताया और माया के बारे में? इतना ही, 2 लाइन। मुझे इतना ही मालूम पड़ा। आपको क्या समझ में आया इसमें? आ, मुझे माया के बारे में पता। उन्होंने आ, एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में भी आ गया कि भैया अंधेरा होता है तो हमको कुछ दिखता नहीं है, इसके लिए ऐसा लगता है कि भाई ये सांप जैसा है। लेकिन जैसे ही लाइट किया तो क्या दिखा था? सांप नहीं है तो रस्सी है। हाँ। बराबर। और हम लोग सांप समझ के डर रहे थे, लेकिन जैसे ही हाँ। लाइट हुई तो हमने देखा कि तो सांप नहीं है, क्या है? रस्सी है। तो उसमें आपको हाँ। क्या समझ में आया? जो भी है, अंधेरा कहाँ पे होता है हमारे जीवन में, और हमको क्यों जब ऐसे सांप जैसा लगता है? कहाँ कहाँ हमको सांप जैसा लगता है? कहाँ कहाँ हमको डर लगता है सांप समझ के? अंधेरा हमारे मन में इसलिए रहता है कि हमारे अंदर अज्ञान है, इसलिए। हाँ, तो जहां जहां भी अज्ञान है वहां वहां हमको वो रस्सी की जगह सांप दिखाई देगा। बरोबर। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ तो क्या होगा कि दरअसल चीज हमको दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई ये दरअसल चीज ऐसा है। तो हमारे जीवन में से वो भय, गुजराती में भय बोलते हैं उसको, कि भय भड़काट चला जाएगा। इसको कि हमको दरअसल चीज की जानकारी हुई, डर मतलब जैसे डर डर, डर हाँ डर, डर चला जाएगा। ऐसा है क्योंकि हमको दरअसल चीज की हमको जानकारी हुई। मतलब जब तक हमको दरअसल चीज की जानकारी नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में ये डर बना ही रहता है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी जगह पे डर रहता है। बहुत जगह पर। बहुत जगह पे डर रहता है। तो उसका कारण क्या है? ये मालूम पड़ा ना सांप के उदाहरण से कि इसकी कारण क्या हाँ, है? कि अज्ञानता कारण है। क्या कारण है? अज्ञानता। अज्ञानता। कोई वस्तु के कारण हमको डर नहीं है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमको डर लगा रहता है। तो वो डर अगर हमको निकालने का है, अगर डर को निकालने का है तो हमको क्या करेंगे?
तो उसकी जगह हमको ज्ञान का एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे जीवन में से डर धीरे धीरे निकल जाएगा। हमको कितनी जगह पर डर लगता है? आप बताओ, 4-5 जगह। हाँ, जब एग्जाम के समय और एग्जाम के समय डर लगता है, और कुछ गलती, मम्मी के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, गलती हो जाए, हम्म, गलती नहीं और हो जाए कि गलती हो जाए इसके डर लगता है? गलती होने के बाद डर लगता है। बाद में डर लगता है, हाँ, कि अभी क्या होगा। और डर हाँ, कहाँ नहीं हाँ, लगता है वो भी बता रहा। हाँ हाँ, वो भी बराबर है। मम्मी को ना कहने का डर नहीं लगता है। हाँ, हाँ, मम्मी काम सौंपती है तो ना कहने का डर नहीं लगता, बिल्कुल फियरलेसली आराम वो से। बता देते मैं नहीं करूंगी। हाँ। वो नहीं बताया। કેમ હસવું આવે છે શ્રેયા? डर तो बहुत जगह पे नहीं लगता है। किसी को कोई काम में ना बोलने का भी डर नहीं लगता है। बरोबर, कोई काम सौंपे तो ना बोलने का डर नहीं लगता है कि इसको मैं ना बोलूंगा तो क्या होगा, तुरंत ही ना बोल देते, मैं नहीं करूंगी, ऐसा है। और हाँ, जहां जहां भी खुशी डर लगता खुशी है का तो डर उसका लगता है। खुशी का डर लगता है। करिश्मा खुशी का का डर लगता है। नहीं। નહીં, नहीं लगता। खुशी का। ओके। ऐसा है। खुशी आपको डर लगता है बड़ी दीदी का? नहीं, हाँ, लगता है वो एक रिजल्ट कम आ जाता है तो डर। क्या डर लगता है? जब मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ रिजल्ट, उससे थोड़ा कम आ जाता है तो वो डांटती है मुझे ज्यादा ही। वो एडवाइस से डर लगता है मुझे उसकी। तो फिर आपका आपका डर ज्ञान किधर गया उधर? उससे मैं ज्ञान यूज नहीं किया मैंने। माया का, माया का ज्ञान किधर हो, क्या हो गया उधर? ऐसा है, अज्ञान हो गया। बरोबर ना। तो जहां जहां भी हमको डर लगता है तो पहले उसका वो एनालिसिस, दादा भगवान ने कैसे थे, तो दादा भगवान से किसी को डर नहीं लगता था, ऐसे थे दादा भगवान। तो हमको वो ज्ञानी पुरुष हमको प्राप्त हुए, तो हमको भी ऐसा बनने का है कि हमारे कारण से भी किसी को डर नहीं लगे। ऐसा हमको अंदर से जितना जितना नक्की करेंगे तो धीरे 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 करके वो हमारे कारण से भी कोई आदमी डरे नहीं, वो भी बहुत बड़ी अहिंसा माना जाता है। उन्होंने जो बताया कि 5 महाव्रत जो हाँ, समझाया, तो अगर कोई जीव हमारे कारण भी डरता है तो भी अगर हिंसा में गिना जाता है, ऐसा है। तो हमारे दादा भगवान एक ज्ञानी पुरुष कैसे थे कि इनको हाजिरी में किसी भी जीव का, तीर्थंकर भगवान भी ऐसे थे कि इनकी हाजिरी में किसी को भी डर भय ऐसा नहीं लगता था। ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान की हाजिरी में अगर वो उदाहरण भी देते हैं कि अगर शेर और बिल्ली वो दोनों साथ में आके बैठते थे उनकी सभा में, तीर्थंकर भगवान की सभा में, शेर और बिल्ली है, शेर और बकरी है, दोनों साथ में आके बैठते थे, वो दोनों अपना प्राकृतिक स्वभाव भूल जाते थे। तो ऐसे ही अगर हम नक्की करें कि भाई हमारे कारण किसी को डर नहीं लगे, तो धीरे 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 करके हमारे अंदर भी ऐसे गुण प्रकट होते जाएंगे। और बाकी मूल बात रही कि डर हमको जो लगता है उसका मेन कारण अज्ञानता के कारण डर लगता है। और जैसे जैसे ही एक ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ही हमारे जीवन में अंदर डर का प्रमाण धीरे धीरे घटता जाएगा। ऐसे ही निर्भय पद, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा निर्भय पद हमको ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। और वो पद में हम जितना 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 हमारे अंदर वो सिद्ध होता जाएगा, उतना उतना हमारे अंदर से भी डर निकल जाएगा। ज्यादातर डर हमको क्यों लगता है कि हमने जो गलती किया है उसके कारण हमको डर या ज्यादा लगता है, भाई उनके कारण ज्यादा लगता है। अगर गलती नहीं किया होगा तो आपको कभी भी डर लगेगा नहीं। धीरे धीरे जितनी जितनी गलतियां कम होती जाएगी, इतना इतना हमारे जीवन में डर कम होता जाएगा। तो जहां जहां भी हमको डर लगता है तो वहां वहां हमको समझने का है कि कुछ गलती हुई है, इसके कारण हमको डर लगता है। तो कैसे करके वो गलती निकल जाए तो हम भी
अपने दर्शन मतलब हमारे जीवन में से भी डर चला जाएगा। तो आपको नक्की करने का है, एक थोड़ा लिस्ट बनाने का है कि हमको कहाँ कहाँ पे डर लगता है। बरोबर है? वो आप लिस्ट बनाओगे तो उसका कारण भी आपको उसके सामने धीरे धीरे मिलता जाएगा। बरोबर है दीपक आनंद जी, कुछ बोलिए आगे। प्रकाश जी नहीं है उधर तो नहीं, ओके ओके। हाँ I'm there. आप Just कुछ listening. ऐड करना क्या है देखो, दीपक दादा? हाँ, वो कविराज का एक पद है, वहीं पे डर है गलत जिए हो, छुप छुप के जो काम किए हो, वहीं पे डर है गलत जिए हो। छिप छिप के कुछ काम करते हो, हर गलत काम छिप छिप के ही करते हैं। बाहर दिखाते हैं हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं होते हैं। होता है ना ऐसा कभी? हाँ हम्म, यस और नो? हाँ हाँ। हाँ करिश्मा नहीं करती है ऐसा? हाँ हाँ, क्या ये बात है? और किसी को बताए ना बताए, किसी को पता चले ना चले, आपको तो पता चलता है ना कि आपने कहाँ कहाँ चीटिंग किया है। हाँ हमको बताने की जरूरत नहीं है, डैडी मम्मी को भी नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन आपको तो पता है ना आपने कहाँ चीटिंग की है, गलत किया है। उसको याद करके अगर आप माफी मांगोगे तो वो दोष अवश्य जाएगा, क्योंकि आपने आपकी गलती को देखकर, जो छिपा रखा था उसको देखकर अच्छे से हृदय से उसका पछतावा किया और तय किया कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। करोगे? हाँ आपके लिए करना है, हमारे लिए नहीं करना है। हाँ डैडी मम्मी के लिए भी नहीं करना है, आपके लिए करना है। मोनिका को खुशी के लिए भी नहीं करना है, खुद के लिए करना है। खुशी को करिश्मा के लिए भी नहीं करना है, खुद के लिए करना है। छोटी, करोगी ना? हाँ हेलो श्रिया, समझ हाँ में आया? दादा। हाँ, हमें बताया ना दादा ने, हम खुद के लिए ही जिम्मेदार है, संपूर्णतः हम खुद के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब तक हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते, पापा मम्मी, आप तो पुत्र, रनी दादा वगैरह, हमारे जो जो वेल विशर है वो हमारा प्रोटेक्शन करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ऐसा है, छिप छिप के जो काम किए हैं वहीं पे डर है गलत जिए हो। जय सच्चिदानंद। भाई सच्चिदा तो अभी देखो ये आपके पुत्र आए थे तो दिन में कितने दफा जय सच्चिदानंद बोले आपने? बहुत बार बहुत बोलो। बार। तो हाँ आज कंटिन्यू किया, भूल गया? हाँ एक दूसरे को किया सुबह? सुबह नहीं, बात बट किया था, सुबह नहीं किया। करिश्मा, दोनों दीदी को किया आज सुबह? कितने दफा जय सच्चिदानंद बोला? कितनी दफा से- नहीं बोला? खुशी आपने? हाँ मैंने 2-3 बार बोला था दीदी को, और दूसरा किसको? मम्मी को और पापा को। वेरी गुड। मोनिका? हाँ आज मैंने मम्मी और पापा को और खुशी को बोला था, बट करिश्मा का। क्यों? अभी बोल दो। हाँ जय सच्चिदानंद का। जय सच्चिदानंद दीदी। श्रेया आपने? मैंने मम्मी और पापा को बोला। जब दादा घर में रहते नहीं है लगता है, दादा को नहीं दादा को निकाल दिया? नहीं रहते तो हैं, पर आज बात ही नहीं हुई। न तो हर रोज बात होती है, पर वेट मिनट, आप स्कूल में जाते हैं, हाँ स्कूल से घर आते हैं, हाँ तो दादा घर पे होते हैं, हाँ। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग दादा को जय सचिदानंद जाके बोलने का और पगे लगने का।
दादा दादा हेलो रजनी दादा, हाँ बोलो। कहाँ चले गए थे आप? क्या हो दीपक दादा? You were not there for a while. Oh, my international is very bad. Okay, Daksh. आज मैंने मम्मी को, दादी को और मामा को सच्चिदानंद बोला था और कितनी दीदी दफा? को। कितनी दफा? मैंने मम्मी को एक बार बोला था, बाकी सबको भी एक बार ही बोला था। मम्मी एक ही दफा देखा आपने सारा दिन में? नहीं, स्कूल गए थे? हाँ वो सुबह उठ के तो बोलना मांगता है, स्कूल जाके वापिस आके इस घर में जो है सबको प्रणाम करने का, जय सच्चिदानंद बोलने का। दादा ने सुबह तो बोला था। वेरी गुड। हिताक्षी बा? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को 3 बार जय सच्चिदानंद बोला था, पापा को 1 बार, दादा को 2 बार और मेरी छोटी बहन को 2 बार बोला था। वेरी गुड वेरी गुड। प्रैक्टिस पढ़ो तो इसका बहुत बहुत फायदा होता है बच्चे लोग। आपको मालूम नहीं हो कि कितना फायदा हो। दीपक दादा, हसमुख काका किधर गया? दीपक जल्दी बोलिए शॉर्टली कि कितना फायदा होता है जय जैसे बोल के। दीपक दादा शुद्धात्मा देखेंगे तो होंगे परमात्मा। अभी आपको क्या होना है वो देख लेने का। शुद्धात्मा देखेंगे अपनी गलतियां दिखाई देंगी, शुद्धात्मा देखेंगे सामने वाले निर्दोष दिखाई देंगे। यही छूटने का रास्ता है। यही सच्चिदानंद। जय सच। ओके सो चिनाई प्लीज कीप इट अप। ओके एज मेनी एज टाइम। अभी तो प्रैक्टिस 5-6 दिन से प्रैक्टिस हुआ। यू कैन नॉट लूज योर प्रैक्टिस। और दूसरे लोग सब प्लीज प्रैक्टिस करो। ओके ओके ओके। अभी टाइम तो हो गया। जस्ट ब्रीफली 1 मिनट नंबर 2 पेज रखो दीपक दादा। क्या भैया, आई ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन। और चीना आपको अभी हॉलीडेज है क्या? अभी स्कूल चालू हो गया? मेरा मेरा करिश्मा का चल रहा है। क्या क्या बोला? मेरा और करिश्मा का स्कूल चल रहा है अभी। ओके और खुशी का कुछ। ओके दीपक दादा, कैन यू जस्ट ब्रश ओवर दिस क्विकली? जय सच्चिदानंद। कल हमने देखा, अगर हमें पहले का खाना हुआ जो है वो हजम नहीं हुआ है, डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, ठीक नहीं लगता है, तो बेस्ट मेडिसिन इज नेक्स्ट मील, स्किप 1 मील। यानी ब्रेकफास्ट मिस करो या लंच मिस करो या डिनर मिस करो। फिर हमें आराम भी लेना इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आराम लेने से हमारी रोग के लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। फिर मूंग की दाल है या मूंग है, वो बेस्ट रैम है, बेस्ट पल्सिस है, बेस्ट ऑफ ऑल पल्सिस बोलता है। वो गुजराती में कहावत है, मग लावे पग। मूंग पैर लाता है, यानी अगर जो पैर चलते बंद हो गए हैं तो आपके पैर चलने लगेंगे। फिर बताया कि लहसुन जो खाते हैं, गार्लिक, तो वो टूटे हुए हड्डी को भी जोड़ते हैं। फिर बताया ज़्यादा खाना, अच्छा भी खाना अगर ज़्यादा खाया तो वो पॉइजन हो जाता है, और जो खाना नहीं है वो थोड़ा भी खाया तो वो पॉइजन है। ये समझना है, तो बैलेंस रखना है। एंड आई बिलीव आप बच्चे लोगों को ये बैलेंस नॉर्मली नेचुरली बहुत अच्छा रहता है। कभी कभार आप लोग ज़रा ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हमने देखा है बच्चे दे आर वेरी गुड, नेचुरली उनका सिस्टम अच्छा चलता है। फिर आता है, ऐसा कोई भी
तरकारी वेजिटेबल नहीं है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, यानी सभी वेजिटेबल में, सभी भाजी में, फलों में उसको क्या बोलेंगे, हमारी तंदुरुस्ती को आधार देने का कोई ना कोई पार्ट है ही, बेनिफिट है ही। और आखिर में बताया, डॉक्टर आपको लंबी उम्र नहीं दे सकते, ये बात समझना है, क्योंकि डॉक्टर खुद को मर्यादा होती है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हम ढंग से खाएंगे, हेल्थ और संभालेंगे, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जय सच्चिदानंद। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो। Okay, tomorrow. ओके। Okay, so if you have time, please read the second page. Okay. Jai Satchidanand. Thank you, Deepak Dada. जय सच्चिदानंद। ऑल द बेस्ट मैथमेटिक्स के लिए। હસમુખાનંદજી, આમાં તમને કઈ એડ કરવું હોય તો હેલ્થ ને 7-8 પોઈન્ટ દીપક દાદાએ કહ્યા, તમારે કઈ એડ કરવું હોય તો ના બરાબર છે. દાદાનું કઈ યાદ આવતું હોય તો. હેલ્થ માટેનું મેઇન જે કીધું ને કે પહેલા પેલું હિન્દી 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 ચાવીને વધારે ખાવા. हिंदी में? अच्छा, ओके ओके। वो चबा चबा खाना के खाओ। जितना भी खाते हैं वो चबा चबा के खाना चाहिए। और दादा भगवान बोलते थे कि एक गुजराती में कोड़ियों के एक कोड़ियो લગભગ જેટલા દાંત હોય એટલી વખત ચાવવાનો, એટલે 32 દાંત હોય તો 32 વખત એને ચાવવાનું, પછી અંદર निवाला, લિક્વિડ થઈ एक જાય। निवाला। એટલે કે પાણી एक निवाला, जितने अपने दांत होते उतने बार उसको चबा चबा के खाने का। और वो बोलते थे कि पानी को खाने का और खाने को पीने का, ऐसा बोलते थे। मतलब पानी भी जैसे हम खा रहे हैं वो करके करके हमको अंदर उतारने का है, और हम खा रहे हैं वो इतना लिक्विड हो जाए कि पानी जैसा लिक्विड हो जाए, तब अंदर उतरेगा तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका पाचन और डाइजेस्ट होगा। अभी हमारी जो आदत है वो कैसी आदत है कि अगर खाना खाने बैठेंगे ना तो 5 के 10 मिनट के अंदर ही हम फटाफट फटाफट करके खा लेंगे, तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब खाते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल तो के पहले दादा भगवान भी बोले थे कि भाई चित्त की हाजिरी में खाना चाहिए। और चित्त की हाजिरी में हम कब खा पाएंगे, तो क्या हमारे यहाँ अभी जो कुछ लोगों बच्चे तो मोबाइल देखने की भी आदत है, तो धीरे धीरे हमको कम करने का। और खाने में जितना जितना हम चबा चबा के खाएंगे, बरोबर। और पानी भी ऐसा नहीं है कि भी हमको आ गया और सीधा गटगटा गए, तो पानी भी हमको खाते उस तरह से हम लेंगे तो धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट सिस्टम हमारा एकदम इम्प्रूव होगा। और जितना डाइजेस्ट सिस्टम हमारा इम्प्रूव होगा इतनी हमारे हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगा। अभी जितना भी हेल्थ का इश्यू बढ़ गया है उसका कारण, मेन कारण ये है खाने में बहुत ज्यादा स्पीड हो गई हमारी। और जितनी जितनी स्पीड मतलब चबाने का कम होगा, जैसे मुंह में डाला अंदर उतर गए। जैसे हम गोलगप्पे खाने बैठते हैं तो क्या होता है कि जैसे आया वो दूसरा आया उससे पहले खा लेते हैं। तो वो कुछ जो आयुर्वेदिक वाले बोल रहे थे गोलगप्पे इंडिया में काफी सारा हेल्थ का इश्यू आ गया, तो वो चबाने का टाइम ही नहीं रहता है। जैसे आया अंदर उतार दिया, जैसे आया अंदर उतार दिया। तो सिस्टम को हमको धीरे 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 करके उसको इम्प्रूव, हमको अगर खाना खाना बैठते हैं तो हमको नक्की करके बैठने का 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक हमको इसको धीरे 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 करके चबा चबा के खाने का है। तो वो आप धीरे धीरे अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस आपको आगे जाके अपने हेल्थ में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે બચ્ચે લોग, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, હવે હસમુખ કાકા हम आप पंच सुनेंगे। इन लोग को तो बहुत अभी सत्संग मिला और लास्ट एक दिन तो पद का मीनिंग भी बताया था। अभी देखो ये क्या आज क्या गाएंगे आप। तो यही है ना दादा सुदर्शन,
मोनिका? हाँ ओके हाँ श्री सच्चिदानंद। दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, दादा सुदर्शन से निज सोए को जगा देंगे, सतपथ में सिद्धांत जीवन रोशन कर दें, दादा सुदर्शन से निज चेतन दे। मोनिका वीडियो बंद करो आपका। ओके देंगे नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे, हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, जग सत्य असत्य में अग्र से चढ़ते सर, सत्य लक्ष्मी संयम से जगा दे बैठ, समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे, दादा की दिल में सृष्टि में देंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे। जय सच्चिदानंद। गाइस बहुत बढ़िया गाना। तो हिंदी में आपको सब मालूम पड़ गया? इसमें डाउट था। ओके पहले दादा का सुदर्शन का क्या आपको निज चेतन देखेंगे, अभी तो आपने बताया था। आप तो पुत्र ने क्या बोला? एनीवे उसका मालूम है। उन्होंने कुदर्शन सुदर्शन के बारे में बताया था। ओके असुम अका उन लोग को समझाइए। हाँ दादा का सुदर्शन निज चेतन देखेंगे। सुदर्शन चक्र जो कृष्ण भगवान हाथ में लेके घूमते थे, वो आपने देखा होगा ना कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर। हाँ कृष्ण कृष्ण भगवान ऐसे हाथ में लेके वो घूमते रहते थे। वो जहां जहां भी हमने कृष्ण भगवान को देखा होगा, उनकी फोटो देखी होगी, तो उनके हाथ में वो सुदर्शन चक्र हमने अवश्य देखा होगा। देखा है ना? हाँ हाँ तो वो क्यों हाथ में लेके घूमते थे कृष्ण भगवान? वो सभी के अंदर शुद्धात्मा देते थे इसलिए। देखेंगे हाँ। तो सुदर्शन मतलब सौड़ू दर्शन, गुजराती मैंने सौड़ू दर्शन कहते हैं। अब तक हमारी ये जो दृष्टि है, उन्होंने कभी भी जीव के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन नहीं किया था। वो सिर्फ पैकिंग ही देखते थे और उसमें ही हमारी दृष्टि अटक जाती थी। लेकिन ये दादा के ज्ञान और दादा के ज्ञान से हमको सुदर्शन प्राप्त हुआ। सुदर्शन मतलब जीव के अंदर जो शुद्धात्मा का दर्शन है वो प्राप्त हुआ। और कृष्ण भगवान के हाथ में निरंतर सुदर्शन लेते, वो किसी भी जीव में
कभी भी उनको मतलब उन्दी दृष्टि से मतलब दूषित देखते नहीं थे। ऐसा कृष्ण भगवान उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि उनके सामने कितने भी संजोग आए, कैसे भी संजोग आए, लेकिन किसी को भी उन्होंने दूषित दृष्टि से नहीं देखा। तो ऐसा ही दृष्टि हमको आज के ये कलयुग के काल में दादा भगवान के निमित्त से हमको दादा का सुदर्शन मतलब दादा की दृष्टि हमको प्राप्त हुई, और वही दृष्टि से हम हर एक जीव के अंदर निज चेतन देखेंगे कि जो शुद्धात्मा भगवान मेरे अंदर है, वैसे ही शुद्धात्मा भगवान जीव मात्र के अंदर विराजमान है। वो दृष्टि हमको कहाँ से प्राप्त हुई? तो कि दादा भगवान के निमित्त से ये दृष्टि हमको प्राप्त हुई। और क्या बोलते कि ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। जो हमारे अंदर सोया हुआ था आज तक, वो ज्ञान की दृष्टि से या ज्ञान के वचनों से, दादा भगवान के ज्ञान के वचनों से वो जागृत हुआ। वो हमारा दरअसल स्वरूप दादा भगवान की ज्ञान वाणी सुन के वो जागृत हुआ, और दादा भगवान का सुदर्शन हमको प्राप्त हुआ, और वो सत परमानेंट सिद्धांत जीवन में रोशन कर देंगे। जीवन रोशन मतलब ये जो दृष्टि हमको परमानेंट सिद्धांत मिला है, वो हमारा जीवन को रोशन कर देंगे। आमूल परिवर्तन जीवन का सांफल्य तन मन अहिंसा से व्यवहार में संभाव्य એવું છે। तो कि ये हमारे जीवन में दादा भगवान का ये जो दर्शन प्राप्त हुआ, सुदर्शन प्राप्त हुआ, तो उसके कारण से हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। आमूल परिवर्तन मतलब हमारा जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य अवतार की सार्थकता किसमें है? तो कि उनको जिसको खुद के स्वरूप का मतलब मैं कौन हूं ये दृष्टि प्राप्त हो गई, तो उसका जीवन सफल हो गया। क्या हो गया? उसका जीवन सफल हो गया, और उसके जीवन में आमूल परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन कभी भी नहीं आ सकते, ऐसे परिवर्तन हमारे जीवन। और हमको ये सबको अनुभव है कि जब से दादा भगवान का ज्ञान या दादा भगवान की वाणी हमारे जीवन में आई है, मतलब दादा भगवान का सत्संग हमारे जीवन में आया है, तब से हमारा जीवन जीने की दृष्टि में से आमूल परिवर्तन हो गए। मतलब पहले हमारा जो दृष्टि था वो संसार मतलब बाह्य दृष्टि था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा जो दृष्टि है वो हमारे खुद के अंदर मतलब अंदर हमारे तरफ से जाती नहीं, वो आमूल परिवर्तन आ गए। पहले हम दूसरों का दोष देखते थे, दूसरों की गलती देखते थे, लेकिन अभी आमूल परिवर्तन क्या हुआ? तो क्या हम खुद की दृष्टि मतलब खुद का दोष देखना शुरू हो गया है। पहले हमारे अंदर दूसरों के प्रति बहुत ही द्वेष भाव होता था, लेकिन ये आमूल परिवर्तन क्या हुआ? तो क्या दूसरों के प्रति हमारा द्वेष भाव चला गया। ऐसे बहुत सारे आमूल परिवर्तन ये दादा भगवान के सुदर्शन से हमारे जीवन में आए, और ये हम सबका अनुभव है। हम सभी महात्माओं का, सभी आप्त पुत्र का अनुभव है कि एकदम आमूल ड्रास्टिक चेंज जो बोलते हैं उसको, वो हमारे जीवन में दादा भगवान के ज्ञान के माध्यम से आए हुए, और सबका अनुभव है। तो कि जिन्होंने भी एक दादा भगवान का मतलब ज्ञान प्राप्त किया है, उसका जीवन सार्थक हो गया। क्या हो गया? सफल हो गया। क्यों सफल हो गया? तो कि वो जन्म मरण के जंजाल मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, जन्म मरण की जंजाल में से वो मुक्त हो गए। बरोबर। और क्या बोलेगा? तन मन से अहिंसा, व्यवहार में संभाव। तो क्या अभी दरअसल अहिंसा हमारे जीवन में धीरे धीरे करके ये ज्ञान प्राप्ति के बाद शुरू हो गई। ये बाहर की जो अहिंसा है वो स्थूल अहिंसा है। क्या अहिंसा है? वो स्थूल अहिंसा है। और सच में अहिंसा कौन सा है? तो कि जो मैं नहीं हूँ। हिंसा किसको बोलते? दादा भगवान कहते थे कि जो आप नहीं हो उसको आप मैं हूं ऐसा मानते हो, वो सबसे बड़ी हिंसा है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे ये तन मन के अंदर दरअसल अहिंसा का गुण प्राकट है, मतलब उसका बीज हमारे अंदर आ गया। और वो बीज धीरे 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 करके 5 आज्ञा के माध्यम से वो संपूर्ण अहिंसा में धीरे धीरे करके वो बाहर आके उसका आनंद हमको मिलता जाएगा। और व्यवहार में संभाव, ये दादा भगवान की जो आज्ञा है, ये व्यवहार में कभी भी संभाव हमारे रहता नहीं था। या राग रहता था या द्वेष रहता था। कोई अच्छा मिले तो उसके प्रति हमको राग हो जाता था, और किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो उसके प्रति द्वेष हो जाता था। लेकिन एक ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये व्यवहार के अंदर हमको ये जो चौथी आज्ञा मिली
के संभाव से निपटारा करे। वो आज्ञा का हम जितना जितना हम उपयोग करते जाएंगे उतना उतना व्यवहार दृष्टि से ये संभाव हमारे अंदर धीरे 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 हो करके खिलता जाएगा। ये आज्ञा जो मिली है वो कृपा से बीज स्वरूप मिली है। वो आज्ञा को हमको धीरे 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 करके वो आज्ञा हमको सिद्ध करने की है। क्या करने की है? वो बीज से लेके उसको सिद्धि तक हमको ले जाने का। और जितना जितना आज्ञा हमारे जीवन में सिद्ध हो गई, जितनी जितनी आज्ञा भी सिद्ध हो गई, एक आज्ञा सिद्ध हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, चार हो गई तो पांचवी तो अपने आप होती ही रहती है। तो धीरे 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 हमारा जीवन का भी लक्ष्य क्या है कि एक एक करके जितने भी दादा की 5 आज्ञा है तो यही अवतार में हम उसको सिद्ध कर ले। मतलब सिद्ध मतलब उसका अनुभव संपूर्ण रूप से हमको हो जावे, ऐसी शक्ति ऐसी कृपा हमारे ऊपर दादा भगवान की रहे, यही हमको मांगने का है। बराबर है। निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे, नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे। बरोबर ने? तो कोई भी जीव अगर हमको नफरत से आती है तो उसके सामने हम शुद्धात्मा दृष्टि से मतलब मोहब्बत से मतलब शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे। मतलब जो भी हमारे अंदर नफरत है, द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, वो अगर हम शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे तो मोहब्बत से वो जल जाएगी। ऐसे के हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे। ऐसे कविराज का ये जो पद है तो उसको आप सिर्फ गाते जाओगे ना, गाते जाओगे दिन में, अगर ये 2-3 लाइन भी आप गाते जाएंगे ना तो धीरे 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 करके हमारे अंदर वो परिवर्तन आता ही जाएगा। ऐसा कि हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, ऐसा है। और ज्ञानी पुरुष है ऐसे हिंसा के सागर के अंदर उनके करुणा दृष्टि से ही जीते थे। और वही ज्ञान आज हमको प्राप्त हुआ है कि ये सारे हिंसा का जो सागर है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो हिंसा का सागर है, उसके अंदर वो ज्ञानी पुरुष जैसे करुणा से जिए है, उन्होंने जी के दिखा है, वैसे ही हम जी पाएंगे। ऐसी आज्ञा हमको उन्होंने दिया हुआ है। बरोबर। तो ये पद तो सिर्फ आप जितने जितने जो भी लाइन हमको पसंद है ना, और 2-2 3-3 बार आप अगर गाएंगे ना तो धीरे 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 करके उसका अर्थ आपको धीरे धीरे मालूम भी पड़ता जाएगा और वो हमारे अंदर धीरे धीरे आता जाएगा। और वो राइट टाइम पे कहीं भी अगर ऐसा होता है, नफरत जैसा हो जाता है, तो वो टाइम पे जागृति हमारी आके खड़ी हो जाएगी। कहीं कुदर्शन हो जाता है, किसी को दोषित देख रहे तो तुरंत ये लाइन मतलब हमको जागृत करके नहीं, हमको दादा का सुदर्शन से ही देखने का है। तो ये पद इतने सारे कविराज के जितने भी पद है वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में लिखे गए पद है। दादा भगवान कहते थे कि शुक्ल ध्यान की श्रेणी के अंदर लिखे गए पद है, तो आप उसको जितने भी बार गाएंगे या जितनी बार बोलेंगे उतना उतना हमारे अंदर धर्म ध्यान स्थापित होता जाएगा और उसका लाभ हमको मिलता जाएगा। बराबर है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में आपको मालूम है क्या होता है? मोनिका, 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 हाँ, धर्म ध्यान किसी के धर्म को विनय करना, दूसरे धर्म। एक है सच ही पर अपने महात्मा के लिए, और शुक्ल ध्यान हसमुखा का बता बोलो उन लोग को मीनिंग। कुल 4 प्रकार से मुख्य ध्यान बताए गए हुए हैं। एक पहला आर्त ध्यान बोलते, क्या बोलते हैं उसको? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। दूसरा रौद्र ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान। तीसरा धर्म ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म ध्यान। और चौथा शुक्ल ध्यान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान। वो ध्यान मतलब हमारे अंदर की जो परिणति है उसको ध्यान जाड़ी भाषा में बोलते हैं। बरोबर है। वो जैसा आपका ध्यान होगा वो हिसाब से आपकी गति नक्की होगी। आप कौन सी गति में जाएगा वो कैसे नक्की होगा, तो वो ध्यान के हिसाब से नक्की होगा। जिसका जैसा ध्यान होता है वो हिसाब से उसको अगली नेक्स्ट बर्थ उसको मिलता है। बरोबर है। तो वो ध्यान मतलब जो क्रिया के समय हमारे अंदर की जो समझ है, बरोबर है, हमारा अंदर का जो ध्यान है वो हिसाब से हमको नेक्स्ट बर्थ
मिलता है। मतलब पहले में पहले जो आर्त ध्यान बताया, आर्त ध्यान मतलब क्या होता है, तो के निरंतर हमारे अंदर अंदर हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भाव हो जाता है, बरोबर है, मतलब हमेशा चिंता उपाधि रहती है, बरोबर है, कोई चीज हमको ज्यादा टाइम बहुत अच्छी लगती है तो हम उसके सामने बैठे रहते हैं, या किसी को, मतलब हमारे अंदर की जो बढ़तरा है, गुजराती में इन्हें बढ़तरा के, वो उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। हमारे अंदर ही वो जलाते रहता है, वो आर्त ध्यान जलन मतलब खुद। जलन, हम्म। अंदर की जलन। हाँ, अंदर की जलन, बराबर, दूसरे किसी को नुकसान नहीं करते लेकिन खुद ही जलते रहते हैं, तो उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर्त ध्यान बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं रौद्र ध्यान, मतलब हमको किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है लेकिन दूसरे का नुकसान पहुंचा देते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे का नुकसान पहुंचा, मतलब किसी के ऊपर ऐसे मार झूड़ करते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, मतलब शरीर से दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रौद्र ध्यान। किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा कर दिया, बोलते हैं ना रौद्र स्वरूप धारण किया है, किसी ऊपर गुस्सा कर दिया, किसी को ऐसे मार दिया, ऐसे हिंसा कर देते हैं, पर उसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हमारा ध्यान, हम लोग जो वीडियो गेम रमते हैं, खेलते हैं, मोनिका जी, वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसमें हम स्थूल रूप से किसी को नहीं मारते हैं, बराबर है? लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है, हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, कैसे उसको मारूं, कैसे उसको मारूं, कैसे उसको मारूं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ध्यान किसी को मारने में है, तो उसका परिणाम रौद्र ध्यान के हिसाब से आएगा। अगर स्थूल हिंसा नहीं किया है आपने, लेकिन उसका रिजल्ट मारने का जो भाव हुआ ना, उस टाइप से उसको रिजल्ट मिलता ही रहता है, क्रिया के माध्यम से नहीं, लेकिन उसको भाव बहुत रहते हैं। तो आजकल के बच्चे में क्या होता है कि ज्यादातर जो अपने वीडियो गेम खेलते हैं, वो दादा वो एक उदाहरण भी देते थे कि भगवान महावीर के समय के अंदर एक ऐसी प्रथा थी कि भाई वो टाइम पे वो लोग जो जानवर की बलि चढ़ाते थे, क्या चढ़ाते थे? जानवर की बलि चढ़ाते थे। और किसी महात्मा ने बताया कि भाई ऐसी बलि चढ़ाना चाहिए नहीं। तो फिर तो बोले इसका क्या परिणाम आएगा, तो कि ये किसी के जानवर को मारते ऐसा करते तो उसका परिणाम ये आएगा कि आपको नरक गति में जाना पड़ेगा, मतलब हार्ड रौद्र ध्यान बोलते हैं उसको, ऐसा आएगा। तो उन्हें बोला ठीक है, तो फिर हम ये नहीं करेंगे। और फिर थोड़े दिन बाद वो वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, तो वो जानवर का तो नहीं रखा, लेकिन उसकी जगह उसका पुतला रखा। क्या रखा? उसका पुतला पुतला। रखा, और वो पुतले की बलि चढ़ाते थे। तो फिर भगवान को हाँ। फिर से पूछा कि भगवान इसका भी क्या परिणाम आएगा, तो भगवान के बोला कि जैसे वो पहले करता था वही परिणाम अभी आएगा। तो क्या अभी तो उन्होंने जानवर तो नहीं रखा है, जिंदा किसी को तो नहीं मारते, तो भगवान क्या बोलते हैं, वो जिंदा भले नहीं किसी को मारते, लेकिन उसके अंदर जो भाव है, हिंसक भाव है, उसके कारण उसका परिणाम आएगा। तो अभी हम लोग ये जो गेम्स खेल रहे हैं वो सब, ज्यादातर गेम अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूँ, तो वैसे ही गेम्स रहती है, वो हिंसक भाव हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, बरोबर है? तो अगर हम ऐसा खेलते हैं तो हमको उसके प्रति जागृत हो जाना चाहिए कि हम ऐसे भी गेम्स नहीं खेले कि जिसके अंदर के कारण हमारे दूसरे को मारने का हिंसक भाव प्रकट होता है, तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तो क्या पहला आर्त ध्यान हुआ, उसके बाद हुआ रौद्र ध्यान, उसके बाद क्या हुआ? धर्म ध्यान। तो क्या जिसको, हाँ, तीसरा ध्यान क्या बोला? धर्म ध्यान बोला। तो क्या जो खुद की चिंता नहीं करते लेकिन वो दूसरों के लिए जीते हैं, बरोबर है, तो उसको धर्म ध्यान। किसी को दुख देने का मन नहीं होता है, बरोबर, वो चाहे भले मंदिर में नहीं जाते हुए, लेकिन दूसरे को सुख देने की इच्छा आती है, वो सारे का सारा धर्म ध्यान उसको बोलते हैं। किसी का अनहक का लेने का विचार नहीं आता है, वो सारा धर्म ध्यान बोलता है। चौथा, तो क्या जिनको खुद की स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, मैं कौन हूँ, वो उनको ज्ञानी पुरुष की कृपा से उनको मालूम पड़ गया है, तो उनका शुक्ल ध्यान का बीज अंदर आ गया है, और वो बीज धीरे धीरे करके वो पूर्ण तरह शुक्ल ध्यान के अंदर रह पाएगा। मतलब मैं कौन हूँ, मतलब वो निरंतर खुद के ही स्वभाव में रहते हैं। मैं कौन हूँ मतलब खुद के ही सुख में रहते हैं, वो शुक्ल ध्यान के अंदर निरंतर रहते हैं। उस 4 प्रकार के ध्यान बताए गए, और वही हिसाब से उनकी गति रहती है। जैसा ध्यान वैसे उनकी
गति, नेक्स्ट गति उनके वो हिसाब से ही आता है। और हमको एक ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमको बाहर में धर्म ध्यान और अंदर में शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई है, बरोबर ना? हाँ हाँ तो ये मालूम ये पड़ता है नहीं ना? और आगे हाँ। अगर आपको कुछ पूछने का तो पूछ लेना, दीपक आनंद जी ये सब बैठे हैं। हाँ कुछ पूछने का है? दीपक नहीं। आनंद जी आप कुछ बोलिए, ऐड करिए थोड़ा। और मोनिका कुछ ऐसा नहीं? है, हाँ धर्म ध्यान का एक लक्ष्य ये भी होता है कि जिसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परिणाम मिट जाता है। जैसे कि किसी को दुख देने की भावना हो गई तो आपने पछतावा किया, तो पछतावा करने से वो आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में से आर्त ध्यान पर आ जाते हो आप। पछतावा किया ना, इसीलिए। और हाँ बहुत दिल से पछतावा करते हैं तो वो आर्त ध्यान भी पार कर लेते हैं और धर्म ध्यान में आ जाते हैं, यानी फिर उनको सुख देने की भावना होती है, वो धर्म हाँ ध्यान में चले जाता है। और इसीलिए धर्म ध्यान से पुण्य इकट्ठा होता है और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से पाप बनते हैं। आर्त ध्यान हाँ रौद्र ध्यान से दुख आएगा, अपनी इच्छा विरुद्ध होगा, और धर्म ध्यान से अपनी इच्छा अनुसार सब होता है। और जब बहुत सारा धर्म ध्यान का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं जिनसे हमें स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जय सच्चिदानंद। जय ओके सच्चिदानंद। तो ध्यान का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? मेडिटेशन। ओके सो मेडिटेशन, नहीं दीपक दादी, ओ यस महात्मा के लिए बोलता हूँ। यस, Have you done right? For Mahatmas, करेक्ट। these are, yeah. Okay. Okay, Monica. हाँ हाँ। Okay, anything else? जय सच्चिदानंद। नहीं। Okay. Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय Okay, Deepakan ji. जय सच्चिदानंद। પુષ્પકાનંદજી, આપણે હમણાં આહારી, વિહારી અને નિહારીને, એટલે આ નામધારીની આખા દિવસની પ્રક્રિયાને જોવાનો પુરુષાર્થ, એટલે આપણી અંતરાત્મા દશાએ પ્રજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશમાં આપણે એને જોવાનો આખો એક પુરુષાર્થ રાખ્યો છે. આખા દિવસની કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપણી છે તે આહાર વિહાર નિહારમાં આવી જાય, અને એ આહાર વિહાર નિહારની ભૂમિકા અને પ્રક્રિયામાં આપણી આજે બધી નોર્માલિટી નથી, એટલે સહજતા નથી. કેમ તો કે એ ક્રોધમાન માયાલોભથી પ્રેરિત છે, અને ક્રોધમાન માયાલોભથી પ્રેરિત હોવાના કારણે એ આહાર વિહાર નિહારની સંજ્ઞા જે આપણે પ્રક્રિયા છે તે નોર્મલ રહેતી નથી. એનાથી પોતાને યા બીજાને દુઃખ થાય, એને આપણે જોવા માંગીએ છીએ છૂટાપણાના પ્રયોગથી. અને આ રીતે તો તમે તમારો આ બાબતનો પુરુષાર્થ માટે તમે શું કરો એ જણાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. આહાર, નિહાર અને વિહાર એ ત્રણ જે પ્રક્રિયા છે, તો એનાથી છૂટા રહેવામાં જોવા માટે પહેલામાં પહેલું હું આ ત્રણેયથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, અને આ જે છે એ આખું પૂતગલના ગુણ છે, મારા ગુણ નથી. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું અને મારી અંદર આ એક પણ વસ્તુ છે નહીં. આહારની વસ્તુ પણ નથી, વિહારની વસ્તુ પણ નથી અને નિહારની વસ્તુ પણ નથી. અને ત્રણ થી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બીજી વસ્તુ તો કે આ ત્રણ વસ્તુ
બહાર દેખાય છે એટલે પૂતગલ આખું જે પૂતગલ છે, પૂતગલ અને પૂતગલના પરમાણુ, પૂતગલની બધી અસરો, પૂતગલનો વિહાર, પૂતગલનો આહાર, એ બધી જ વસ્તુઓ રૂપી છે, એટલે બહાર દેખી શકાય એવી છે. અને હું જે છું એ એની સામે અરૂપી છું, કારણ કે હું જોઈ શકતો, હું મારામાં અંદર દેખાય આ બધી જ વસ્તુ રૂપી એટલે દેખાય એવી છે, અને હું અરૂપી છું. તો કે એ રૂપી અને અરૂપીનો ભેદ જેટલો જેટલો સમજાતો જશે એટલું એટલું આ બહારની વસ્તુથી હું જુદો છું, આહારથી જુદો છું, વિહારથી જુદો છું, નિહારથી જુદો છું, એ અંદર આપણે અંદર પાકું થતું જશે. કારણ કે રૂપી વસ્તુઓ એ જ બહાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અરૂપી વસ્તુને જોતા નથી, એનો અનુભવ જ આપણને થાય છે, અને એ અનુભવ જ એ આપણે શુદ્ધાત્મા છે એ અરૂપી છે, એ દેખાય એવા નથી, અને બહાર જે દેખાય છે એ બધું જ રૂપી વસ્તુ દેખાય છે. એટલે કે હું અરૂપી છું અને આ બહારની વસ્તુ આહાર નિહાર અને બધા કરનાર એ રૂપી વસ્તુઓ છે. એટલે રૂપી વસ્તુ એટલે પૂતગલની વસ્તુઓ છે, અને તેનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો કે એ અંદર ગોઠવણી અંદર રહ્યા કરે છે કે ભાઈ આ બહાર જે બહાર ગયો તે હું નથી, આ ગયો તે હું નથી, એ બધી જ વસ્તુઓ પૂતગલ છે. અને પૂતગલ એટલે કે પેલાનું ભરેલું હતું એ જ વસ્તુઓ એ ખાલી કરી રહ્યું છે, નવું કશું કરતો નથી, કે નવું જગ્યાએ પણ નથી જતો અને નવું બીજું કશું ખાતો પણ નથી. જે પેલાનું ભરેલું હતું એ જ વસ્તુ આની અંદર ગલન થઈ રહી છે, અને એ મારી નથી. એ વસ્તુ અંદર દિવસની અંદર એ બધા પુરુષાર્થ વચ્ચે વચ્ચે અંદર ગોઠવાતા રહે છે કે ભાઈ આ સવારથી બપોર સુધી જે પણ ગયો, આ દોડધામ કરી, આ કરી, તે કરી, એ હું નથી અને એ મારી નથી. એ અંદર ગોઠવણી અંદર રહ્યા કરે છે, અને આખો ભાગ છે એ પૂતગલનો, હસમુખનો જે આખો ભાગ છે એ બધો જ પૂતગલનો ભાગ છે. અને પૂતગલ એ શું છે તો કે આખું પરમાણુનું ભરેલું ચાર્જ કરેલું હતું એ જ એને સમય આહાર વિહાર અને નિહાર રૂપે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે, અને એનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આ અંદર સમજણ વચ્ચે વચ્ચે ગોઠવણી કરતા જઈએ છે કે જયારે જયારે પણ આપણે આવીએ ત્યારે અંદર રાખીએ કે ભાઈ આનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, આનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, આનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા. એટલે કે એક કશાદ ભાગમાં હું આવું નહીં, જે દેખાતી કઈ પણ વસ્તુમાં હું નથી, એ અંદર મતલબ રૂપી કઈ પણ વસ્તુમાં હું નથી. હું શેમાં છું તો કે હું અરૂપીમાં, દેખાય એવો છું નહીં, એ બધા જ ભાગમાં હું છું. એ અંદર ધીરે ધીરે અંદર અભ્યાસ કરીએ છીએ, અને એ આગળ ધીરે ધીરે કરતા, અને એનો ખૂબ જ આનંદ રહ્યો છે એવું છે. કારણ કે આપણે અત્યાર સુધી જે કઈ પણ વસ્તુ છે તો દેખીતા ભાગને જ હું માની અને એને જ વધારે એ કરવા માંગે છે, અને આપણે દેખીતા ભાગમાં નથી, આપણે અરૂપીના ભાગમાં છે, રૂપીના ભાગમાં નથી, એવું છે. અને બહારનું જે રૂપીના ભાગમાં જેટલા જેટલા પણ અંદર પેસી ગયા છે એમાંથી બહાર નીકળીને પોતે પોતાના અરૂપી ભાગમાં, એટલે દેખાય નહીં એવા ભાગની અંદર આવતા જઈએ છે, તો એનો આનંદ વધારે રહ્યા કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. થોડું એક બીજું એક ઇલેબોરેશન તમે જરા કરો કે ઓર્ડર આવે, મોટો ઓર્ડર હોય એટલે વધારે પૈસા આવવાના છે, તો તમારા ફેક્ટરી પર ચક્કર, ફોન કરવાનું એ બધું વધી જાય. નોર્મલ હોય તો તમે કે હું આવું છું, રાત્રે આવું છું, સાંજે આવું છું, સવારે 12 વાગે આવીશ. પણ જ્યારે ઓર્ડરની કમિટમેન્ટ હોય ને બધું હોય તો કેવું એ તમારી જે સામાન્ય હલનચલન છે કે વિહારની એક્ટિવિટી છે તે થોડી ઉગ્ર થઈ જાય, તીવ્ર થઈ જાય, અને નહીં હોય તો સામાન્ય રહે. એવી રીતે. એટલે આ કહેવાનો પાછળનો હેતુ શું છે કે સામાન્ય વ્યવહાર છે ત્યાં તો આપણું નોર્માલિટી રહે, ટાઈમે જાય. કદાચ 2 કલાક પહેલા પણ જ્યારે આજે મારે વહેલા જવાનું છે, આજે પેલું એટલે શું કહેવાય કે ડિસ્પેચ કરવાનું છે એટલે હું વહેલો જઈશ, તો કે તમારી એક્ટિવિટી આ વહેલી કેમ થઈ, તો કે આના કારણે થઈ. એટલે એવી રીતે એ પણ થોડું કહો ને. ક્લાયન્ટ મળવા આવવાના હોય, કસ્ટમર આવવાના હોય, મોટો ઓર્ડર હોય, ભાગની અંદર એ પહેલા એટલું દેખાતું નતું, પરંતુ એ ભાગની અંદર વધારે ઓર્ડર હોય અથવા વધારે એ થવાનું હોય, અને એ જે વખતે જે દોડા દોડીનો ભાગ થાય છે તો એની અંદર આપણે જોયું તો કે એની અંદર આપણી અંદર પૈસા કમાવાનો જે સૂક્ષ્મ લોભ છે ને એ અંદર કામ કરાવતો, એ એક્ટિવ થતો હોય છે. એટલે તમે અત્યારે જે વાત કરી ને કે આપણા જે કસાયો હોય છે એના આધારે આપણે એ બાજુ અંદર જતા રહે છે. એટલે અંદર જે એ વધારે મળશે, મને વધારે કામ મળશે, એટલે એ જે ભાગ ખરો એ ભાગ આપણને અંદર
દોડાય રાખે છે. ભાઈ હવે આગળ દોડો, હવે આનું કામ પૂરું કરો, હવે આનું કામ પૂરું કરો, આનો ઓર્ડર પૂરો કરો. એ ભાગની અંદર આપણને વધારે લોભનો ભાગ જે હોય છે એના લીધે અંદર દોડવાનું વધારે રહેતું હોય છે. અને જે આપણને એમ થઈ જાય કે ભાઈ બસ મેં આટલું કમાઈ લીધું છે, હવે મને જરૂર નથી, તો પછી એ ભાગની અંદર બી સ્થિરતા અંદર દેખાય છે કે ભાઈ તો પછી આપણે પાર્ટી કે 4 દિવસ પછી જ આવશે, આટલા દિવસ પછી જ આવશે, તમારું હોય તો તમે લખાવો એવું છે. પણ જ્યાં જ્યાં પણ અંદર એવું થઈ જાય લોભ છે, કોમ્પિટિશનનો ભાગ પણ અંદર હોય છે કે ભાઈ આ સમજો હું એટલે નહીં પેલા કરું તો આ ઓર્ડર બીજાને આપી દેશે. એટલે એ જે કસાય વાળો ભાગ જ્યાં જ્યાં પણ એક્ટિવ થાય છે એ બધા જ ભાગની અંદર આ પ્રકૃતિની અંદર જે એને દોડાદોડ વધી જતી હોય છે. એ આખું ઓબ્ઝર્વ કર્યું અંદર કે જ્યાં જ્યાં લોભ નું હોય પછી કસાય એ મારાથી આગળ નીકળી જશે, એ મારાથી આગળ નીકળી, પણ એને રિવર્સ કરીને આપણે જોઈએ છે તો અંદર બધું દેખાતું હોય છે કે ભાઈ આ શેના કારણે આટલું બધું દોડ કરે છે એવું છે. અને એ વસ્તુ દેખાય પછી ધીરે 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 એની પર બધું વર્કઆઉટ થાય કે ભાઈ તમે શેના માટે આટલું બધું દોડો છો, શેમાં કરો છો, આ મૂકીને. એટલે તમારી પ્રાયોરિટી ચેન્જ નથી થતી ને પછી તમે દોડો તો બરોબર છે કે ભાઈ સત્સંગ મૂકીને દોડતા નથી ને, તો કે ના, તો પછી થોડું એને એલાઉ કરીએ. પણ જો સત્સંગ મૂકીને દોડતા હોય તો પછી એને ત્યાં બ્રેક મારીએ કે ભાઈ ના, તારે પ્રાયોરિટી તો આપણે આ નક્કી કરી છે એટલે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આ રાખવાની, પછી તમારે આ બધા આગળ વધારતા જવાનું. એ પ્રમાણે Frozen. જય સચ્ચિદાનંદ. It's frozen, no? Yeah, I got disconnected still. શું જાગૃતિ હોવી જોઈએ? હા, તમારું કટ સ્ટીલ થઈ ગયું હતું, હોલ્ડ થઈ ગયું હતું. શું કાનાજી? હા, આવે છે અવાજ? હા. હા, એટલે આમાં Right. શું જાગૃતિ હોવી જોઈએ, શું પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ, એની માટે કઈ કહેજો હોય તો. હા, એટલે આપણે છે ને આમ કરવાનું કે નહીં કરવાનું નથી કહેતા. આપણે શું કહીએ છીએ કે કઈ બાબત આપણા જીવનમાં બને છે અને કઈ રીતે એ બાબત આપણી ક્રિયાને વધારે કરે છે યા ઓછી કરે છે. કે જેવી રીતે ઓર્ડર આવવાનો છે, કસ્ટમર આવવાના છે, ડિસ્પેચ કરવાનું છે, અને એની પાછળ આપણે ગમે તો ખરું કે આપણે મોટો ઓર્ડર મળ્યો છે કરીને, પણ એનો મતલબ શું છે કે જે તમને આપણે કે હું તમારો કોમ્પિટિટર છું, તમને ઓર્ડર ગયો એટલે તમને એના પૈસા મળ્યા, પણ એ ઓર્ડર મને આવત તો મને પૈસા મળે, પણ એટલે જે મારી પાસે આવવાના હતા તે તમારી પાસે આવ્યા, એક રીતે કહીએ. એની પાછળ પાપ પુણ્ય જ કામ કરે છે, તમારું પુણ્ય કામ કરે છે અને મારું પાપ કામ કરે છે. પણ એમાં કેવી રીતે સામસામા નિમિત્ત બને છે. મારા પાપના કામમાં, મારા પાપના પરિણામમાં તમે નિમિત્ત બનો છો, તમને ઓર્ડર મળે છે એમ કરીને. એટલે કહેવાનું કે આપણો જીવન વ્યવહાર કેવો છે, કશે ને કશે તમને સુખ મળે છે તો એની સામે તમારાથી કોઈને દુઃખ અજાણતા આવી રીતે અપાઈ જાય છે. એટલે આપણી જાગૃતિ એ રીતે પછી વધતી વધતી શું થાય તે કે હવે એ ઓર્ડર તમને તમારી પુણ્યથી જ મળ્યો, પણ એ પુણ્યનો ઓર્ડર યસ, પણ મારે જે તમને ઓર્ડર ગયો એટલે જે મને નુકસાન ગયું તે મારું છે તો મારું પાપ જ, પણ એમાં નિમિત્ત તમે બન્યા ઇનડિરેક્ટલી. એટલે તમે શું કરો તો કે ભલે મારી પુણ્યથી આવ્યું છે પણ સારું અમને આ નુકસાન ગયું ને મારા લીધે એટલે હું પ્રતિક્રમણ કરી લઉં છું. બરોબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ રીતે આપણે સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મમાં જવાનો આખો આપણો એક પ્રયોગ થઈ જાય છે એમાં, કે કઈ રીતે આપણી જીવન વ્યવહાર કષાયોના કારણે, કર્મના કારણે આવી રીતે થાય છે અને તેમાં પણ આપણે પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટી જઈએ છીએ. એ ખ્યાલ આવ્યો ને? આ ખ્યાલ આવી ગયો છે. એટલે આમાં એવું જ થતું વધારે હોય છે કે આપણો કોઈ ઓર્ડર પર લઈ જાય ને તો પણ આપણું ચિત્ત એની અંદર રહ્યા કરતું છે કે આ કેમ લઈ ગયો, એના આખા બધા કારણો શોધીએ, આ શોધીએ, તે શોધીએ, સ્થૂળમાં આપણે શોધીએ, અને અંદર બી આખી દ્રષ્ટિ એ સાઈડ જ હોય છે. પણ આજે તમે વાત કરી ને કે ભાઈ
આપણે એને પાપના ઉદયના નિમિત્ત બનીએ છીએ, એટલે એની માટેનું જે પ્રતિક્રમણ હોય છે, કારણ કે આપણે ભાવના તો આખી જગત કલ્યાણની કરીએ છીએ અને આપણા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ ના થાય, પણ આ અજાણતા પણ દુઃખ અપાઈ જાય છે. એટલે જે એ બ્રોડ વિઝન છે, એ બ્રોડ વિઝન પર આખું આવરણ આવી જાય છે. એટલે મેન આપણે કે દાદા કહે છે ને કે આ તો વિતરાગ વિજ્ઞાન છે, વિતરાગોનો માર્ગ છે, પાય પાયનો હિસાબ માંગે. એટલે આપણે કશે પણ આપણી પાસે આવે તો જે મારી પાસે આવ્યું તે હવે જો એ તમારી પાસે આવવાનું હતું પણ મારી પાસે આવ્યું, તો મારી પાસે આવ્યું ને એટલે તમને ડિરેક્ટલી ઇનડિરેક્ટલી દુઃખ થવાનું, તો હું એના પ્રતિક્રમણ કરી દઉં છું. છે રિલેટિવ જ છે, રિલેટિવ, પણ એમાં પણ જે તમને ઇનડિરેક્ટલી જે દુઃખ થાય છે ને મારા નિમિત્તે, ભલે એમાં મારું પુણ્ય કામ કરી જાય છે પણ એમાં નિમિત્ત તો હું બની જાઉં છું ને. એટલે અહીંયા ધીમે ધીમે કરીને પછી આપણે બધો જીવન વ્યવહાર એવો થઈ જાય ને કે જ્યાં આપવા લેવાનું જ ના હોય. એટલે કીધું સંભાવે નિકાલ કરી નાખ. સંભાવે નિકાલ એટલે નહીં આપવાનું ના રહે કે નહીં લેવાનું ના રહે, બધું બેલેન્સ. એટલે પૂતગલનું લેવા દેવા પછી આપણે ફ્રી થઈ જશે, બિઝનેસ ટોટલ ઝીરો. પણ એ છેક લગી ચાલવાનું, છેક લગી, અને ત્યારે જ ટોટલ પૂતગલના ઓબ્લિગેશનમાંથી એટલે જવાબદારીમાંથી આપણે છૂટી જઈએ છીએ. એટલે એને એમ કહેવાય છે કે છેલ્લું એ પૂતગલ જે છે ને, જ્યારે આપા લેવાનું પતી ગયું, હવે એ પૂતગલ આખું અને આત્મા છૂટો પડી જાય છે. છૂટો પડી જાય એટલે જે સિદ્ધ ક્ષેત્ર જાય છે ને તેની એ વાત છે ને. એને શાસ્ત્રીય ભાષામાં શૈલેષીકરણ કહે છે, છેલ્લી મુક્તિ. અને એક સમયમાં થાય છે. આખી અહીંથી છૂટે છે ને ત્યાં પહોંચી જાય છે. જબરજસ્ત. શૈલેષીકરણ કુદરતી રીતે એનો સમય આવે છે, એને પરિનિર્વાણ કહે છે. પાવાપુરી જ્યાં આપણે ગયેલા મહાવીર ભગવાનની નિર્વાણ ભૂમિકામાં, એ ભૂમિકાને ત્યાં થયેલી, અને જે કેવળ જ્ઞાનની ભૂમિકા જે એમને રુજુવાલિકામાં થયેલી, ગોદોહન શું કહેવાય આસનથી, ગોદોહન આસનમાં બેસીને એ ત્યાં શપક શ્રેણી થઈ હતી, અને પાવાપુરીમાં શૈલેષીકરણ થયેલું. શું જબરજસ્ત છે. આ તો આપણે શાસ્ત્રની જોડે આપણે મેળવી લઈએ અને આપણને આમ ખબર પડે ને તો આપણને ઓહો ઓહો થાય કે શું વાત કરે. અને દાદાએ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે તે અહીં બેઠા બેઠા સિદ્ધ ક્ષેત્રની ભૂમિકાનો આપણે સ્વાદ ખરેખર લઈ રહ્યા છે, પણ એને ખબર નથી પડતી. પણ એ વિજ્ઞાન સ્વરૂપની ભૂમિકામાં આપણે બેસાડીએ છીએ. પણ આ બધા નીચેના કામ બાકી છે. ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ, કારણ કે કોઈ વ્યવહાર શું કહેવાય સુલઝાવ્યો જ નથી ને, સમાધાન કર્યું જ નથી. આ તો વચ્ચે આપણને સીધો તાજ પહેરાવી દીધો ભગવાનનો, મૂળ તાજ, અને એની આપણને સમાધિ રહે છે, અને એનું સમાધિ મરણ પર રહે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અમુક આનંદજી એવું થાય કે આપણી ઈચ્છા ના હોય નિમિત્ત બનવાની કોઈના બીજાના દુઃખનું, પણ તે છતાંય થઈ જતું હોય છે. આપણી ઈચ્છા નથી, બિલકુલ નથી, તે છતાંય. તો એ વખતે શું કરવું જાગૃતિ? હવે આમાં આપણે દાખલો લઈએ. મહાવીર ભગવાનની વીરતા ઇન્દ્ર મહારાજની સભામાં વખાણાય. એ તો એમની દશાનું ફળ હતું કે આવા કાળા માથાના માનવી, આવા વીર તો અપવાદ તરીકે જ હોય એમ કરીને. તો એ ખાલી વાત સાંભળીને બીજા દેવને અંદર ચડ્યું, ઓછું લાગી ગયું. આ એમના પરાક્રમનું પરિણામ હતું મહાવીર ભગવાનનું. એ એમને ઓછું લાગ્યું. તો જઈને સંગમ દેવ હતા એમનું નામ, તે જઈને એમણે ભગવાન પર ઉપસર્ગો કર્યા. જો એમ કે કેવા સુરવીર છે, કેવા મહાવીર છે કરીને. ભગવાન સમજી ગયા કે
આપણો જ હિસાબ આવ્યો એટલે વર્ધમાન સ્વામી પાસે શું કહેવાય સંગમ દેવ નામક વર્ધમાન સ્વામી આયા. ખબર પડી? એટલે જે એક વાત જે આ છોકરીઓએ કરીને જે છે એ દેખાતું નથી અને જે દેખાય છે એ નથી. એટલે એનો દાખલો એમ કહીએ, મોનિકાએ પૂછ્યું ને, મોનિકાએ કીધું તો કે એને સામી ખુશી દેખાય છે કે આ ખુશી છે કરીને, તો એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. હવે એ ખુશી નથી, એ ખરેખર ખુશી નથી. એ માને છે કે હું ખુશી છું અને આ પણ માને છે કે ખુશી છે. મોનિકા પણ માને છે ખુશી છે. એનું અજ્ઞાન છે. એટલે હવે જ્ઞાન હોય તે શું કરે કે એ માને કે ખુશી છે ને આ સમજે કે આ મોનિકા જ છે. ખબર પડી? બહુ સ્થૂળ ભાષામાં, બહુ સ્થૂળ ભાષા. એટલે એમ કહ્યું, તમે કહો છો કે હું હસમુખ આનંદ છું અને હું તમને હસમુખ આનંદ જોઉં અને માનું કે હસમુખ આનંદ છે, તો એ મારી અજાગૃતિ છે. હવે હું જાગ્રતપણે રહું તો મને તમે માનો કે હું હસમુખ આનંદ છું અને હું સમજુ કે આ દીપક આનંદ છે. એટલે હસમુખ આનંદ તરફથી દીપક આનંદના પર કંઈ પણ આવે તો કશું અડે નહીં, નડે નહીં, ઓછું લાગે નહીં, કશું નહીં થાય. કે પૂતગલનો હિસાબ પૂતગલમાં પૂરો થયો, એટલે કે દીપક આનંદનો હિસાબ દીપક આનંદમાં પૂરો થયો. તેમાં હું શુદ્ધાત્મા મેં આને સારી રીતે છૂટા રહીને આ હિસાબને પૂરો થતા જોયો અને એમાં મેં વચ્ચે કશે હાથ નાખ્યો નહીં, ડખો ડકલ કરી નહીં. એવી રીતે. હજી દાદા તમે કશું કહેતા હતા? હા હા, મેં તો તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યો બે વસ્તુ. તમે કહો છો એક્સપિરિયન્સ નથી કે આલ શેર માય એક્સપિરિયન્સ, પણ ત્યાર પહેલા તમે આ કોન્ટ્રાક્ટ નો એક્સપિરિયન્સ આપ્યો, but that મેં એને એક્સટેન્ડ કર્યું. ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ એવરીથિંગ. રજનીને મળે છે, એવરીથિંગ, ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ એવરીથિંગ. યસ, એટલા માટે ભગવાનનો સ્થૂળ આહાર બી બંધ થઈ ગયો. કેવળ જ્ઞાન થયા પછી સ્થૂળ આહાર, ફિઝિકલ ફૂડ બંધ થઈ જાય છે. એટલે ગ્રોસ માંથી સટલ, સટલ માંથી સટલર ને સટલર માંથી સટલેસ્ટ થાય અને તે છેલ્લા ઓકે ઓકે, બધું પતી જાય. એટલે ટોટલી પૂતગલ થી આપણો સાંધો જ છૂટો પડી જાય, ત્યારે સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થાય. So everything Rajni is getting, you have to be aware that other people may not be getting that. એક મહાત્મા કહે છે કે તો જે જીવ્યા કેવી રીતે? I know. આ જીવન એ છે, આપતા જાઓ, ખાલી થતા જાઓ, અને ખાલી થતું હોય તો એને થવા દેજો. Yes, 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 yes. ભગવાનને એક દેવ દૃશ્ય મળ્યું હતું. એક જણા આયા તો એમને અડધું કરીને આપ્યું. પછી એ ગયા, ગામમાં ગયા તો એમને કીધું કે આ તો બહુ અમૂલ્ય છે. તો પાછા ભગવાન પાછળ આયા કે બીજું અડધું મળી જાય મને. અને સંજોગ ભગવાનને એવો આવ્યો કે વિહાર કરતા હતા તો એ દેવ દૃશ્ય કહે કે કાંઠામાં ભરાયું, તો પછી એ કાઢવાય ઉભા નહીં રહ્યા કે હવે બધું જ છોડ્યું, આખું ઘર છોડ્યું, તો આ દેવ દૃશ્યને શું કરવાનું એમ કર્યું. એ જતું કર્યું તો પેલા લઈ ગયા. પછી આ તો શરીરની ઉપરનું ઉપકરણ એમ કે ને, કશું ઉપર મૂકેલું કે હતું તેને લઈ ગયા. છેલ્લા તો આ શરીર પણ, પૂતગલ પણ અહીંયા જ રહેવાનું છે બ્રહ્માંડમાં. એ 6 તત્વોના 5 તત્વોની જે બધું છે તે બધું અહીંનું જ છે મટીરિયલ. એ સિદ્ધ ગતિમાં આવતું નથી. એટલે એ સિદ્ધત્વની આરાધના, ભક્તિ, સાધના કેવી કરી હશે એ જોવાનું છે. અને એ લેવલ જેમ જેમ આપણે ઉપર ચડીશું ને તે આપણું આ પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણું માર્ગદર્શન કરશે. હમણાં તો ફાઇલના સંભાળ નિકાલમાં રહેવાનું છે કે આપણી જોડે જે જે બધા વ્યવહારમાં આવે છે ને આપણાથી કોઈને દુઃખ ના થાય. અને એમ કરતા કરતા પેલો સમય આવશે જ્યારે આ પૂતગલ બી અહીંયા રહેશે અને આપણે જેવું છે.
અચ્છા જય બીજું સચ્ચિદાનંદ. જય સભા એક્સપિરિયન્સ તમે કહેજો કોઈ કહેતા નથી સો આઈ ટુ એક્સપિરિયન્સ આહાર ના, વિહાર વેરી ને ગુડ. નિહારનો તો આહાર અને નિહારનો તો હવે ઘણા વખતે આપણે કરીએ છીએ સાંભળે છે એટલે ધેટ ઇઝ એની જાગૃતિ તો ઘણી ઘણી વધી ગઈ છે પણ જે આ કરેક્ટ. નિહારની છે આપણે નિહારની એ ખાલી અત્યાર સુધી unless we take before we started સામાયિક મેઇન થિંગ હતું આપણે બહારે જઈએ કારમાં બેસીએ એટલે આપણે જે પ્રાર્થના કરીએ ને એ જાગૃતિ આપણે કરીએ પણ બીજી એવરી ડે અહીંયાથી હું આમ ઉપર છું નીચે જાઉં તો એમાં જાગૃતિ નથી રહેતી કે હું નથી આનંદજીએ કહ્યું ને હું નથી એટલે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રેક્ટિસ ધેટ એવરી ડે અમારા સાંજના અરુણાબેન ને સરોજબેન સાથે આ જ વાતો થતી હોય છે એટલે આમાં છે ને આ એ સોટો મેં એનાલિસિસ કર્યું કે શું કહે છે આ અહીંયાથી જાઉં છું ત્યાં જાઉં છું એ બધું મિકેનિકલ છે પણ જયારે કારમાં જવાનું થાય ને બેસીને આપણે પ્રાર્થના થાય આ થાય દાદા મારી સાથે રહો દાદા આમ કરો ને દાદા પણ અહીંયા નથી એટલે આમ પ્રેક્ટિસિંગ ઓન દેટ કે અહીંયા ઘરમાં કે બહાર જઈએ શુદ્ધાત્મા જોઈ લીધા બહાર એક વાર ઝાડપાનના પછી ખતમ થઈ ગયું એમ નથી થતું ભાઈ રજની ને હું નથી ચાલતો ભાઈ હું નથી ચાલતો વ્યવસ્થિત ચલાવે એ હવે આમ પ્રેક્ટિસિંગ કરેલ ધીસ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ દીપકાનજી કે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બી અવેર ઓફ દેટ ના ના બેસ્ટ. આ બધું ક્રિયા માત્ર પૂતગલની છે અને હું બધી ક્રિયાઓથી મુક્ત છું પણ આજે એ ક્રિયાનું કરવાપણું આપણને છે નહીં ડિરેક્ટલી પણ એ ક્રિયાના પરિણામ રૂપ જે ભોગવટો આવે છે ને એ ભોગવટાનો માલિકી ભાવ રહી છે આપણને મને કરીને ના પણ અને મેકેનિકલ થઈ જાય એમાંથી છે એ નોય દીપકભાઈ મને ના થાય સો આઈ ફીલ મિકેનિકલ થઈ નો અવેરનેસ વોટ્સ હેપનિંગ એમ નહીં એટલે કારણ કે એને શું કહેવાય ઉદયનો ધક્કો કહેવાય ઓકે ભોગવટાનો ધક્કો કહેવાય કે જે ભોગવટાના ધક્કાથી તમારે એ સફરિંગમાંથી પાસ થવું પડે અને તમને એનો ખ્યાલ નથી રહેતો એનો ખ્યાલ પાછળથી આવે કે આ મને નહોતું ગમ્યું કે આ મને ગમ્યું હતું એમ કરીને આ પાછળની વાત કરો ઇટ્સ છો અ પ્રોસેસ. હા આ પાછળની વાત કરો છો તો અત્યાર સુધી શું છે નિહારીનું તો કઈ હતું જ નહીં એક્સેપ્ટ કારનું હવે આ સમાજને લીધે હવે અવેરનેસ ક્રાઇટ શરૂ થઈ છે એ તો એવું જ છે બધું. આ તો આપણે બધા સાથે છે ને એટલે જુદા જુદા પ્રયોગ આપણે સ્વાભાવિક કરતા જઈએ અને આપણી સમજણ આપણી દ્રષ્ટિ શાર્પ થતી જાય ઓકે એટલે એનો ઉપયોગ થતો જાય છે ને એટલે સમજાતું જાય કે આ એવું નથી આ એવું નથી અને એમાં ખાસ કરીને જે આજે ભૂલનો ભાગ છે ને તે પ્રકાશિત થતો જાય છે ને આપણા પ્રતિક્રમણ થતા જાય છે. યસ યસ ઓકે આપણે કીર્તિબેન હા જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી, રજનીકાંતભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માને. જસ્ટ આ જે પ્રયોગ અત્યારે ઘણા મહિનાઓથી આપણે કરીએ છીએ અને મને તો એ બહુ જ હેલ્પિંગ છે. બધી એક્ટિવિટી લાઈક આઈ થિંક નિશ્ચય અને આ જે સાંભળ્યું આપણે રોજ વિધિ થ્રુ દીપકાનંદજી થ્રુ એટલે મને તો એ આઈ થિંક દરેક એક્ટિવિટી કરતા હોય છે નોટ ઓનલી ધીસ 3 પણ મેજોરિટી એટલે એમાં નિશ્ચય કર્યો કે મારે એમાં જોવું છે. સો દાખલા તરીકે જમતી વખતે કે ચા પીવે કે પાણી પીવે ત્યારે બહુ વાર લાગે છે મને બધામાં જોઈ લેવાય છે કે આ રિલેટિવ છે અંદર બેઠેલા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું કીર્તિ પીવે છે કીર્તિ ખાય છે વ્યવસ્થિત શક્તિનું પણ ધ્યાનમાં આવે છે ત્યારે કાળ તત્વ પણ ધ્યાનમાં આવે છે અને હે દાદા ભગવાન મને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આહાર લેવાની શક્તિ આપજો અને બહુ સરસ રહે છે. આઈ થિંક દિવસમાં 3 meals પાણી ઘણી વખત પીએ પાણી પીતી વખતે જળકાયાના દેવોને નમસ્કાર કરીને શક્તિ મળે છે અને એ શક્તિ મને બહુ જ
પોઝિટિવ એનર્જી આપે છે. ઇટ્સ વેરી ગુડ. અને લાઈક આમ રીડિંગ ઓર આમ ડુઈંગ માય વિધિ, ત્યારે એમ થાય કીર્તિ કરે છે હું શુદ્ધાત્મા માત્ર તો જોઉં અને જાણું છું. બહાર જતા હોય, કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા હોય, કોઈ ફોન કરતા હોય, કંઈ પણ, આઈ થિંક ઇટ્સ જસ્ટ કે આ કીર્તિ કરે છે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આઈ થિંક મને એવું લાગે કે નિશ્ચય જે આપણે through all this every day, 2-3 times I'm hearing that, and again I recite that. It comes back to my head in my thing, and it's so helping, and so powerful, giving me energy. Very good. That's my experience I want to Very good. express. બહુ Right. સરસ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હસમુખાનજી ત્રિમત બોલાવો. કીર્તિબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. ઓકે. Jai જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. નમો વિતરાગાય. Namo Vitragay. નમો અરિહંતાણમ. Namo Arihantanam. નમો સિદ્ધાણમ. Namo Siddhanam. નમો આયરિયાણમ. Namo Ayuriyanam. નમો વજ્જાયાણમ. Namo Vasayanam. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. Namo Loe Sabba Sahunam. એસો પંચન મુક્કારો. Eso Panchanamukaro. સૌ પાવપણાસણો. Sabba Pavapanasano. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. Mangalanam Cha Sabvesim. પરમમ હવૈ મંગલમ. Padamam Havai Mangalam. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Bhagavate Vasudevai. ઓમ નમઃ શિવાય. Om Namah Shivaya. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. દિવસ દરમિયાનના પુરુષાર્થમાં આપણે આહારી વિહારી નિહારી આ નામ ધારીને સારી રીતે જોઈશું, અને સાથે સાથે એની સાથે જે કસાય વાળો ભાગ, ભૂલ વાળો ભાગ અંદર સતત કામ કરતો હોય છે ને આપણી પાસે ક્રિયા કરાવે છે કે જેનાથી બીજાને જાણતા અજાણતા પણ દુઃખ થાય છે, તો આપણે એના પ્રતિક્રમણમાં રહીશું. દાદા ભગવાન આપણે બધાને ખૂબ શક્તિ, સમજણ